So am I audible to you? Yes, Yeah. sir. Great. I'm just sharing my screen. If you if you're able to see it, please acknowledge. Yes, it's visible now. That's visible. Yeah. Great. This. So there was one concept that I wanted to discuss once again and make you clear. That was regarding the uh, discrete to continuous case, right? So let's do one thing. I request you all to just forget everything that we discussed yesterday regarding that point 34, 34.5 and 33.5, right? Why am I asking to forget? Because I'm taking this entirely from start. So if you have any of the uh, thoughts of previous, so you can get confused, so that uh, so I request you to like start everything from scratch with me. So what I'm saying here, देखो कल वाला क्वेश्चन जो था, so I was actually being asked probability of x less than 35, right? And this was a binomial case if I'm not wrong, right? And I need to convert it into a continuous case. Now एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि अभी वी नीड टू डू एरर करेक्शन, वी नीड टू डू एरर करेक्शन. सो टेल मी वन थिंग कि if I write this as probability of x less than 35.5, right, that we discussed yesterday, so this will violate this particular thing. Why am I saying yes? Because हमारा जो initial discrete polynomial है, it says that x will be less than 35, means that what this implies, it implies that x cannot be equal to 35. Correct है? Correct है? And if we write this as x less than 35.5, that means we are assuming that now our x has become 35. Correct? So we cannot take this. This was what I taught, not that correctly. So I'm, Yes, sorry to interrupt. yes, yes, please. Is anyone recording? Thanks for asking. Prasanna, are you there? I hope he's not there today. Harshal is recording, I guess. Yeah, Prasanna is there. Yeah, Harshal is recording, ma'am. Okay. Thank you. Let's understand this once again. Okay, let's understand this once again. This is very important thing to understand. So what I'm saying that I am asked that if probability of less x less than 35, so I can write probability of x. I should write x 34.5. Why should I write this and not this? ध्यान से सुनिएगा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ओवरराइड यस्टरडेज थॉट. रीजन बीइंग इज कि अगर हम ये लेंगे, इफ वी टेक दिस, दैट मीन्स वी विल एंड अप saying that x is equal to 35. That means our x equal to 35 will be inclusive in this particular probability. That is not possible because our question is given here. ठीक है, आप समझे इस चीज को? Did you get it? Yeah. Yeah. Yeah, we get it. Yeah. So I'm writing this here, x less than 35. If this is the case, then we will take probability of x less than equal to 34.5. Got it? चलेगा? चलेगा? Yeah, yeah, Got Chandra. it. Now one thing, अभी greater than कब लिया जाए? Okay, now one thing, greater than कब लिया जाए? So if I am given, now listen to this very carefully, if I am given x less than equal to 35, right, that means our 35 is an inclusive quantity. This won't work now because it has been given into the question that x may be equal to 35 also, and it can be less than 35 also. That's why I will take x less than 35.5. क्यों? अभी मैं अगर ये 34.5 ले लेता तो मेरा 35 वाला केस तो कभी कवर ही नहीं हो पाता, राइट? राइट? इफ आई एम डूइंग x लेस देन 35.5, दैट मींस कि मेरा 35 वाला भी इसमें कवर हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज अपर बाउंड एंड इन दिस केस एज लोअर बाउंड. गॉट इट? So let's understand this and let's make a generalized thing of it. Okay.
if okay, if x is less than something, or I can say if no equality, then we will go for lower bound. Okay, I'm not hurrying in this any time so that you can understand it clearly. And if not, na to aap 10 बार पूछो. I have that potential to make you understand 10 times. Don't worry about it. Okay. So I'm writing it here. I am writing a condition if my condition holds equality and लेस इक्वालिटी, राइट. अभी ग्रेटर देन की नहीं, लेस की बात करें. इफ होल्ड्स इक्वालिटी एंड लेस इक्वालिटी, देन वी विल गो फॉर देन लोअर बाउंड. मैं आप लिख देता हूं आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन है दिस थिंग एंड इक्वल टू भी है, छोटा सा ब्लेंडर हो गया. यस, अपर बाउंड यहाँ पे आएगा. आई एम सॉरी. राइट, जो अपर बाउंड आएगा ना वहाँ हाँ, पे अपर equals बाउंड to आएगा. हो यस यस यस, वो मैं राइटिंग में बहुत ज्यादा चला गया था. अपर बाउंड. जाएगा. Okay, upper bound. That means if I am saying that if x is less than or equal to some quantity y, then I'll take upper bound of it. That means I'll take equal to 35.5. Assuming 35 is my midpoint, 35.5 is my upper bound, and 34.5 is my lower bound. ठीक है. एक बार पुरानी जो स्लाइड थी उसको ओपन करोगे क्या? एक हाँ सेकंड हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, एक मिनट. ये लीजिए. बट यहाँ पे जो हमने अच्छा भाई आपने इरेज किया है ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड लिखा हुआ था जो. वही लिखा हुआ है, कुछ भी इरेज नहीं किया. नहीं, आपने शायद व्हेन x इज लेस देन इक्वल मैंने नो इक्वालिटी लिखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे होल्ड्स इक्वालिटी लिखा है. ओके, गॉट इट. अभी मैं सेकंड कंडीशन वही लिख रहा हूँ. कंडीशन इफ नो इक्वालिटी एंड लेस देन समथिंग, राइट, देन वी विल गो फॉर लोअर बाउंड. पावनी मैम, इज इट क्लियर टू यू? Yes, yes. Great. And other guys, is this clear to you? Yes, yes. Where my y is 35. Okay. अभी ये तो हो गया लोअर केस का. अब अपन लेस देन वाले का, अब अपन ग्रेटर देन वाले का देखते हैं. ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ, केस लिख रहा हूँ कि ग्रेटर देन एंड होल्ड्स इक्वालिटी. तो क्या केस बनेगा? ये केस कुछ ऐसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35. करेक्ट है. तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आप इसको डिड्यूस करके बता सकते हो मुझे? What I will go for, lower bound or upper bound? अपर बाउंड जाएगा. अपर बाउंड रहेगा. अपर बाउंड या लोअर बाउंड? लोअर बाउंड जाएगा. लोअर बाउंड. लोअर बाउंड, करेक्ट. वाई लोअर बाउंड? क्योंकि जब मैंने ये लिखा ना तो मेरा 35 इसमें इंक्लूसिव हो जाएगा, राइट. करेक्ट है. x is greater than 34.5 and 35 is also greater than equal to 34.5. करेक्ट है. तो that's why I will go for upper bound. ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लैंग्वेज वाइज, बट आप ये देखोगे तो इजी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. एंड इन लास्ट केस इफ इट इज अगेन ग्रेटर देन एंड नो इक्वालिटी होल्डिंग, तो नाउ यू नो लोअर बाउंड. गॉट इट. इसको लिख भी लेते हैं कैसे. तो इफ आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 35, तो अभी देखो इनवर्स पहले समझते हैं तो हमने को समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग. इफ आई राइट इट हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 34.5, राइट. तो मेरा 35 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35. क्या ये सही है? इज दिस राइट टू से? कम ऑन गाइस, क्विक. ये क्या कंडीशन मेरी सही है? नो. वाई नो, या 35 तो बड़ा ही होता है. बड़ा ही है, बड़ा है, बड़ा सही है. सही है ना.
हाँ Okay, okay. तो बट क्या मेरा 35 इंक्लूड हो रहा है इस वाले केस में? नहीं हो रहा है ना. स्टिल द नहीं कंडीशन गोइंग ग्रेट. दैट्स व्हाई वी विल डू x greater than 35 greater than equal to 35.5. अब अपना केस कभी भी ट्रू नहीं होगा कि 35 इसमें देखो व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि हम x को इंक्लूसिव नहीं है. x इज नॉट इक्वल टू 35 एनी टाइम. तो जब x 35 नहीं है तो कंडीशन ट्रू भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो पर अगर मैं x को 35 डालूंगा तो कंडीशन अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगी. एंड दैट प्रूव्स आवर पॉइंट कि यहाँ पे लोअर बाउंड लेंगे. ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस हाँ मुझे नहीं आया ये लास्ट वाला. नहीं देखो, ये जब एक बात last- बताओ, आपको फर्स्ट वाला समझ में आया? आपको फर्स्ट वाला समझ में आया? हाँ सेकंड वाला समझ में आया? हाँ थर्ड वाला समझ में आया? हाँ ये अपर बाउंड यहाँ तक ही समझ में आया. ठीक. फोर्थ वाला ही नहीं आया ना बस? हाँ चलो मेरे को एक बात बताओ, जल्दी से बताना है ना, फटाफट. ये कंडीशन है. अब मैं अगर ऐसा लिख दूंगा इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 34.5, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 35 डाल दूंगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी. हाँ बट क्या मेरी कंडीशन ट्रू होना चाहिए इसके हिसाब से? क्योंकि x तो 35 हो ही नहीं सकता, राइट? तो x तो मेरा रेंज में आ गया ना. मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरी रेंज हो गई. अभी मेरी रेंज देखना आप एक बार, रेंज क्या हो गई? मेरी रेंज हो गई 34.5 टू इंफिनिटी. यही हो गई रेंज मेरी. राइट. अब 34.5 में तो 35 भी आ गया. एंड आई स्ट्रिक्टली डू नॉट वांट 35 बिकॉज माय कंडीशन इज 35 टू इंफिनिटी होना चाहिए, राइट? ओके. बट Right. इफ आई राइट 35.5 तो मेरी रेंज हो जाएगी 35.5 टू इंफिनिटी. 35.5 अभी देखो अभी to 35 अलाई कर रहा है इस रेंज में. नो, नहीं. दैट्स व्हाई. गॉट इट? ओके गॉट यू. ओके, एवरी अदर एल्स जितने भी हैं, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? एनीथिंग लाइक you can acknowledge me gesture में या by conversation. Is it clear to all of you? हाँ क्लियर हो गया. हाँ चलो ग्रेट. तो चलो क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप करते हैं वापस. Okay, let's go on to the question and start working on it. तो I जो hope क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज फिफ्थ क्वेश्चन ना. fifth question था. fifth तो question था. उसमें 34.5 हो जाएगा ना व्हेन x इज. yes. ठीक. आप बोले तो वापस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. नहीं ठीक है. नहीं? बस हाँ अच्छा. 35.5 किया अच्छा था. ठीक है, मैं बाकी से ही पूछ लेता हूँ. 10 481 ना. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, आई एम आस्किंग. कोई एक यहाँ पे है जिसको ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एंड आई नीड टू सॉल्व इट. यस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर गाइस जिसका आंसर है आंसर बताते जाओ अपने अपने. पता नहीं. अच्छा, आंसर तो सब किसी का भी सही नहीं आया होगा ना, क्योंकि अपन ने भी कंडीशन ही चेंज कर दी है. हाँ हाँ. 35.5 लिया था. तो ओके, लेट्स डू दिस, है ना? कल आप लोग क्या करना, आपके आंसर्स निकाल के रखना और मैं बस स्टार्टिंग में आंसर बोलते जाऊंगा, आप इवैल्यूएट करते जाना, ठीक है? ठीक है. ठीक है. तो मेरे हिसाब से 10 तक हो गया था. 10 तक हो गया था. सबका हो गया था क्या? वी वांट्स एवरीवन टू गो विद दिस पेस, दैट्स व्हाई सबका हो गया था. होमवर्क दिया था ना क्योंकि. हाँ. नहीं 8th वाला एक्सप्लेन एक बार कर देना. वो थोड़ा लॉजिक का डिफरेंस ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, है ना, सब लोगों से. फिफ्थ वाला किसी को डाउट है? नो. ठीक है. सिक्स्थ वाला किसी को डाउट है? नहीं. नो. प्लीज किसी को भी होगा तो फील फ्री, है ना? सेवेंथ वाला किसी को डाउट है? नो. अदर गाइस? पावनी मैम, ऑल क्लियर है सेवेंथ वाला क्वेश्चन? Yes. ओके. एट्थ क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू ऑल? No. यस. एट्थ क्वेश्चन इज अ डाउट. नो. सेवेंथ क्वेश्चन में ए जो है p of x greater than 39 उसको हम क्या लेंगे अभी फिर. Okay. Sorry, I did not hear you. Yes, please, can you ask again? सेवेंथ ए में जो क्वेश्चन है p of x greater than 39 या इसमें अभी अब तो क्या लेंगे? क्या लेंगे फिर. सोचे इसको सोचे क्या लेंगे. तो उसने बोला 39.5 39 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा ग्रेटर देन कंडीशन है, राइट? और इक्वल टू भी नहीं बोला क्योंकि उसने बोला इट शुड बी मोर देन 39. इट इज नॉट सेइंग दैट इट शुड बी एटलीस्ट 39. देखो
एक चीज यहाँ पे आप समझना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगर एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मीन समथिंग दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एटलीस्ट y, राइट। मोर देन ही बोल दिया सीधा, दैट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y, ठीक है। लेस देन ही बोल दिया डायरेक्ट, तो इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन y, एंड इट इज एट मोस्ट बोल दिया, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो x कैन बी मैक्सिमम टू y। गॉट इट। ये चार चीजें है ना, आप इन एवरी एस्पेक्ट दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू यू। प्रोबेबिलिटी हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो अपने टॉपिक्स है, हर जगह इट विल बी इंपॉर्टेंट। अभी जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे वहां पे भी this little words play a lot of role when we are solving the questions and getting wrong answers, okay। तो इस केस में मोर देन बोला 39, तो ग्रेटर देन एंड नो इक्वालिटी, तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे? तो 39 बोला है, तो x ग्रेटर देन 39 मतलब मैं x ग्रेटर देन 38.5 8.5 ले सकता हूँ क्या? यस 38.5। देखो यहाँ पे वापस एक बार देखो, ग्रेटर देन एंड नो इक्वलिटी में छोटा लोअर बाउंड लेंगे, राइट। तो जिसने भी 38.5 बोला था दे आर राइट, करेक्ट। समझ में आ गया सब लोगों को? ये जो चीज है ना, इसको जब आप बार बार मतलब 2-3 जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे ना, तो आपको हैबिट हो जाएगा। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि यार ये 4 केसेस हाउ आई विल रिमेंबर इट, दैट दे आर नो टफ। अगर टफ होते तो मैं ही नहीं पढ़ा पाता आप लोगों को। जैसे थोड़ा सा शीट 2 में आई फेस्ड प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्रेटर देन इक्वल टू में अपर बाउंड होगा, राइट? अपर बाउंड होगा, राइट। तो फिर x p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, वहां पे हम लोगों ने 34.5 क्यों लिया? अरे वो अपन ने बोला ना, उसको हमें चेंज करेक्ट कर करना दिया ना पड़ेगा। हमने, उसे हाँ करेक्ट कर चेंज दिया कर था। दिया है, नहीं करेक्ट। नहीं, वो व्हाइट बोर्ड में अभी तुमने पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले। अच्छा, अरे नहीं, वो एक जनरल केस था, वो उस क्वेश्चन का केस नहीं था। वो तो मेरे को 35 याद था, इसलिए मैंने लिख दिया था। ओके ओके। अच्छा, 8th वाला क्वेश्चन में जिसको डाउट है ना, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव गिवन यू दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो वाला सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आता है, तो वी शुड लर्न इट फ्रॉम बेस, है ना। तो ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो उसमें डिफरेंस क्या था? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 87 था, तो मतलब s निकालना था ना उसमें, तो मतलब सिग्मा बाय रूट n। हाँ एक्स वाला हाँ। अभी यार देखो, इफ यू आर फॉलोइंग मी, तो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, तो आई शुड नॉट गिव यू दैट, राइट। पढ़ाया तो है वो मैंने पहले। सिग्मा में रूटन कब पढ़ाया? आप मतलब पढ़ा दिया क्या मैंने? आई डू नॉट नो। पहले जब हमने वो ट्यूटोरियल शीट हाँ, कवर अब की थी। वो वाली तो पूरी पढ़ाई थी, बट माय हाँ फोकस इज कि चलो, जिसको नहीं, जो नहीं कर पाया उस टाइम ड्यू हाँ टू ठीक एनी है, रीजन, बिल्कुल वी बिल्कुल। कैन गो हाँ हाँ फ्रॉम स्क्रैच, दैट्स व्हाई। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। चलो। अभी देखो, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ लर्निंग की व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी विल बी using and what condition we'll be using. So let's deep dive into it and read all together कि क्या पूछा गया and what to find. It says the mean expenditure per customer at a tire store is 85. So what we can conclude out of it? Anyone? It says mu equal to 85. Correct? And the standard deviation is $9. So standard deviation is $9. Okay. If a random sample, भैया ये line अब, now this line is very important for you all. We are dealing with a random sample here of n equal to 40, right? N equal to 40 is taken, and what is the probability that the sample average? अभी देखो, you need to be very peculiar when you are solving the question. What is asked, you need to check it. यहाँ पूछा what is the sample average, right? दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 39 मोर पीसेस। सो ये पॉपुलेशन में से ही हमेशा निकाला जा रहा है। वो कोई सा भी क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर ऑफ 40 एंजॉय दिस, फ्यूअर देन 40 एंजॉय दिस आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन, राइट। बट अब ये वाला क्वेश्चन इफ यू सी, इट इज आस्क्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल एवरेज एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सैंपल पे बात आ चुकी है अभी, इट्स नॉट ऑफ पॉपुलेशन एनीमोर, एंड व्हेनेवर इट कम्स फॉर सैंपल वी गो फॉर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, सो व्हाट इट सेज, एक होता है, मैं एक बार उसका फुल फॉर्म देख लेता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। SME फुल फॉर्म इन
यार यश, एक छोटी सी चीज पूछनी थी पूछो पूछो, मैं तब कि तक उसका फुल फॉर्म निकाल के रखता हूँ। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि ये लाइक 7th क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया था, व्हेन इट इज लाइक x इज ग्रेटर देन 39, राइट? हाँ हाँ, तो उसके उस केस के अंदर यार, जब चैट जीपीटी से मैंने देखा था ना, तो 39.5 ले रखा था यार उसमें। यार मैंने वो किया, पर है ना, दैट्स वेयर आई फाउंड कि चैट जीपीटी ना हर बार सही आंसर नहीं देता है। यार इट पेड वर्जन तो सही देता है, और इसमें तो ट्रेंड मॉडल है ये विद आप कह रहे हैं paid रॉस version देता है? रॉस रॉस बुक को, हाँ, इसमें वो कर रखा है, रॉस बुक अच्छा, से ट्रेन एक्चुअली कर क्या, रखा है। मैंने 3-4 लोगों से पूछा एंड ये वाले कंक्लूजन पे आया, तो अभी तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो मैंने बताया वो गलत नहीं है। नहीं, गलत तो नहीं होगा। मतलब गलत नहीं, मतलब हाँ, मतलब ये सही है, ऐसा कह सकता हूँ मैं आपको। ठीक है। एंड एक बात और आपसे यही शेयर करना थी कि देखो, जब हम एरर एस्टिमेशन पे बात करते हैं ना, तो वो हाँ, कोई सी वैल्यू हो सकती है 34.5 से 35.5 के बीच में। तो जब हमारा एवरेज में भी आंसर आता है ना, जब पॉइंट में, तब भी तो लमसम, हाँ। या बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, वहां पे छोटे छोटे पॉइंट प्रोबेबिलिटी कभी भी कंसीडर ही नहीं हो पाती है, राइट? क्योंकि हम कंटिन्यूस में कर रहे हैं। तो इवन इफ देयर इज अ स्मॉल डेविएशन, नो, तो हम्म, इट इज कंसीडर्ड। दैट्स व्हाट आई हैव बीन नोन। अभी क्या हमारी फैकल्टी सोचती, दैट मे डिफर, बट व्हाट आई नो फ्रॉम द स्टडीज दैट इट is acceptable when we work on a very large data set. So you really do not have to bother that much. But हाँ, सही चीज पढ़ना is important, so that's why I brought up what I read it. That's why. Okay. ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है। मुझे एक मिल गया है जो मैं ढूंढ रहा था, SME, that is standard error of mean. SME नहीं होगा, वो SEM होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अभी क्या होता है सैंपल में, आप लोगों को अगर पता हो तो, हमारा एक सैंपल ये हो गया, 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 तो इसका एक मीन निकल के आता है, इसका एक मीन निकल के आता है, इसका एक मीन निकल के आता है। सो वी हैव डिफरेंट सैंपल्स एंड ईच सैंपल में हैव सिंपल like single sample mean. And one thing, this symbol denotes population mean and this symbol denotes sample mean. Okay, याद रखिएगा ये। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हमारा जो ये डेविएशन होता है ना, तो हमारा जो SEM होता है, व्हाट इज दिस SEM? इट गिव्स अस द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा बाय रूट एन। नॉर्मल केस में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, बट अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में जाते हैं, सॉरी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में आते हैं, तो इट रिजल्ट्स टू अ सिग्मा बाय रूट एन, एंड दिस रूट एन केम ड्यू टू दिस वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। गॉट इट? देखो, मैंने बहुत डेप्थ में बताया, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग, कि जहाँ पे भी आप अभी स्टैंडर्डाइज कर रहे थे ना फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन यू आर राइटिंग x माइनस म्यू बाय सिग्मा, वहाँ पे आपको x माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन लिखना पड़ेगा व्हेन यू हैव दिस n क्वांटिटी, राइट? क्योंकि सैंपल हो गया। तो आई विल गो विद दिस अप्रोच ओनली, एंड अपन देखते हैं इसको क्या है। तो इट हैज गिवन लॉट ऑफ लाइक data to us, and last में पूछा है what is the probability that our sample x bar will be 87 or more, right? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हम ये करेंगे x bar माइनस म्यू बाय, इस बार सिग्मा बाय रूट एन करेंगे गाइस। ओके, सिग्मा नहीं करेंगे क्योंकि हम सैंपल का निकाल रहे हैं, एंड इट विल बी 87 माइनस 85 अपॉन सिग्मा बाय रूट एन की वैल्यू क्या आएगी, it will be 9 upon root 40. Got it? Correct or not? करेक्ट। तो इसका अगर हम निकालेंगे, तो कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, सिग्मा बाय रूट एन की क्या वैल्यू आ रही है, तो हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 40, दैट इज 1.42. So I'll write 1.42 and 2 divided by 1.42 gives 1.40. तो मुझे क्या निकालना है अब, बेसिकली इट इज वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.408। चलो ड्रिल करें कल वाला। इसकी वैल्यू है 9306। करेक्ट। आपने जो वैल्यू निकाली वो गलत निकाली मैडम, आपने ग्रेटर देन पे नहीं निकालना थी, अपने को लेस पे निकालना थी, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट दैट क्वांटिटी फ्रॉम 1। ठीक है, हाँ, मैंने किया है 1 माइनस p। अच्छा, मुझे लगा कि आप उसका बता रहे वैल्यू। नहीं। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाल लेता हूँ।
1.40 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, 1.4 एंड 0 इज 0.91924, तो 1 माइनस 0.91924 विल इवैल्यूएट टू बताओ 0.080. गेट इट? समझ में आया आप लोगों को? हाउ वी विल बी डीलिंग विद द प्रोबेबिलिटी व्हेन सैंपल एवरेज इज गिवन एंड नॉट द पॉपुलेशन मीन इज गिवन. अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो आपको डायरेक्टली इट वाज आस्क्ड टू यू से दिस, इट वाज आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 39 पीसी विल बी परचेज एंड देयर. तो हम सीधा वही करते थे कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन म्यू, बट यहाँ पे हमें सैंपल एवरेज पूछा है. व्हाई एम आई हाइलाइटिंग अगेन? बिकॉज जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज फाइंड दिस ऑल स्पॉट्स जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें. गॉट इट? अभी 9th क्वेश्चन आप फोकस से पढ़ेंगे ना, तो यू विल गेट what I'm saying. It's saying suppose that during an hour in a large departmental store the average number of shopkeeper is 448. क्या बोला है उसने? 448 बोला है, करेक्ट? तो 448 क्या हो गया, बता सकते हो जल्दी से? म्यू है. क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन मीन देके रखा है. उसने सैंपल मीन बोला होता है एक्सप्लिसिटली, तो वी वुड हैव कंक्लूडेड दैट दिस इज अ सैंपल मीन, बट इट इज गिवन दैट म्यू इज 448. म्यू इज 448 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी देके रखा है 21. And this standard deviation is of population, right? Direct दिया, इसके साथ ही दिया है. क्योंकि what is the probability that a random sample of 49 different shopping hours, so random sample of 49, तो n equal to क्या हो गया? 49 हो गया. मेरा SEM क्या हो गया? SEM क्या हो गया? 21 upon under root of 49, that is 3, करेक्ट है? 21 by 7 equal to 3. चल, परफेक्ट. अब मुझे क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल लाई इनटू 441 446. तो मुझे ये निकालना है 441 लेस देन x बार लेस देन 446. x बार क्यों लिखा? बिकॉज इट इज आस्क्ड दैट रैंडम सैंपल एंड प्रोबेबिलिटी दैट विल लाई इन दिस सैंपल मीन बोला है बेसिकली, राइट? इसलिए तो वही, नथिंग मोर देन दैट. 441 माइनस 448 अपॉन सिग्मा करूंगा, सिग्मा बाय रूट n. करेक्ट. क्यों? रीजन बीइंग सिंपल. तो हमारा क्या हो जाएगा? 3. करेक्ट. z लिख दो इसको डायरेक्ट में. आप समझ गए z कैसे कन्वर्ट हो गया? ये हो जाएगा x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n विल कन्वर्ट इनटू z, एंड अगेन 446 माइनस 448 अपॉन 3. तो ये क्या हो गया? -7/3 लेस देन z लेस देन -2/3, करेक्ट है? -7/3 कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, करेक्ट है? यस. एंड ये क्या होगा? 0.6680, करेक्ट? 0.6666 को मैं 0.67 ले लेता हूँ. अभी कल आपको मैंने बताया था हाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो हाउ वी विल सॉल्व दिस. ये मेरा केस है, ये मेरा हो जाएगा दोनों में से, ये हो गया -0.233, ये हो गया -0.67. तो माइनस इन्फिनिटी टू दिस विल यील्ड दिस. सो व्हाट आई कैन डू, अभी देखो बार बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम समझ चुके हैं कि ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर से माइनस करना है, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, x ग्रेटर देन -0.67 माइनस ठीक है, करेक्ट. अभी माइनस को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे? सब लोगों को अब समझ में आ चुका होगा, राइट? इफ लेस x is less than minus of something, that means that will be equivalent to z is greater than positive of that thing, right? and this positive quantity को मैं यहाँ पे 1 माइनस नेगेटिव क्वांटिटी कर सकता हूँ. everyone guys बताइए मुझे, क्या are we on the same page? Yes, we can do it. Yes, we can do it. किसी को डाउट होगा ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप पूछ लीजिएगा. डू नॉट कीप इट विथ यू, क्योंकि कहीं नहीं ले जा पाओगे फिर रख के अपने साथी उसे. तो यहाँ पे 1 माइनस किया इसलिए उसको वापस से ये कर लिया ना. हाँ, यहाँ पे भी वही केस किया हमने. ये माइनस ये यहाँ पे है, ये क्वांटिटी ये बन गई और ये क्वांटिटी ये बन गई, राइट? 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.33 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.67. अभी ये मैं निकालूं या निकाल लोगे? निकाल देता हूँ. चलो इतना कर लिया तो वो भी कर लेते हैं. 2.33 मतलब 2.3 and 0.3, that is 0.99010, that is 0.99010
minus probability of 0.67, that means 0.6 and 0.07, तो ये हो गया 74857.74857। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा 0.99010 माइनस 0.74857, 0.2415 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया है, आ रहा है एग्जैक्टली 0.2415। our theory is correct, our concept is correct, our calculation is correct, our marks are full. Got it? यस जेड टेबल में माइनस वैल्यूज नहीं देख सकते हैं क्या? यार आप देख सकते हो, बट आपको देना भी तो चाहिए, आप घर से थोड़ी लेके जाओगे सेट टेबल, वो आपको Okay. सर देंगे एंड मैं आपको ये देखो। चलो अब आपने पूछा है तो क्योंकि एक्चुअली लाइक नेट पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए जेड टेबल है, बट आई डोंट नो लाइक एग्जाम में क्या मिलेगा, सो इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्या मिलेगा। एग्जाम में आपको सेम टू सेम एसी जेड टेबल मिलेगी। वन Quiz one, साइडेड। दिखा देता हूँ, वन साइडेड, करेक्ट। ओके ये हो गया। बाप रे इतनी बड़ी थी पीडीएफ। यार ये शायद मेरा सॉल्यूशन डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, आई गेस इसलिए। हाँ सॉल्यूशन डाउनलोड कर रहा था, सॉरी। ये देखो आपको ये जेड टेबल मिलेगी बेसिकली। कैन यू सी दिस? अब इसमें Yes. कैसे निकालोगे बताओ? एंड यहाँ पे उसने टेल प्रोबेबिलिटी बोल के रखा है, ये भी टेल ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी मींस लेफ्ट साइड, राइट? हाँ टेल प्रोबेबिलिटी उल्टी होती है, तो आपको हर किसी को 1 से माइनस भी करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइडेड ही होगा ना, लाइक ये मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है? ये मैं एक बार आपको वेरीफाई करके कल बता दूंगा, ठीक है? यस यस ओके है ना? बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इट टू यू कि भाई आपको नेगेटिव वैल्यू यू वोंट गेट इन दिस, राइट? सो यू नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव टू गेट योर आउटपुट। ओके गॉट इट थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? आर वी मुझे एक सैटिस्फाइड विद दिस चीज क्वेश्चन? उस स्लाइड पे जाओगे क्या? ठीक है, मुझे बस एक चीज जाननी थी, वो जो एक्स बार का है ना फॉर्मूला जो बोल रहे थे, वो एक बार लिख देंगे यहाँ पे। एक्स बार का फॉर्मूला मतलब? आपने जेड में कन्वर्ट किया ना यहाँ पे एक्स बार को। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? ये मेरे को आप ये मुझे बता सकते हो ये क्या लिखा है? 441 माइनस म्यू बाय ये 3 सिग्मा लगा हुआ है सिग्मा बाय रूट ऐसा है, है। करेक्ट? तो बस ये 441 को एक्स बार में कन्वर्ट कर दो, वही हो गया। गॉट इट? यस। हैप्पी टू सी दैट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 10th वाला हो जाएगा, 11th वाला हो जाएगा। अभी 11th वाले पे आ जाते हैं, ठीक है? 11th वाले की मुझे 1 मिनट दीजिए। है क्या मेरे पास? हाँ आप है ना, प्लीज कीप लाइक प्रोवाइड मी सम टाइम फॉर दिस, क्योंकि इसका आंसर है ना जो मेरे पास है ना वो मैच नहीं कर रहा है। मेरे को एक बार रमजान सर को मैंने मेल किया है, आई एम येट टू गेट हिज आंसर नॉट मोर देन टुमारो, सो I'll get that and I'll make you understand this, है ना? 11th 12th जहाँ पे probability population proportion दिया है ना, these are something different concept from normal concept, so we will do this kind of later on, but other than that we can go for it, right? So sorry for disturbing. Can you please show me the previous question once? This previous question. Okay, thank you. okay, चलो। So what I'm doing is मैं आपको 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड I'll make you understand the other topics also, do not worry about it. Actually मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए। नहीं ये बीच में ठीक है, वो 11 समझ आ गया, 12 13 वो सिमिलर है। हाँ एक्चुअली देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज 12 13 14 है ना, ये सब पॉपुलेशन प्रपोर्शन पर है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन पर है। ये भी उसने बता के रखा है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन के ऊपर ही है, क्योंकि हम आउट ऑफ पॉपुलेशन ले रहे हैं। 10% ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन वाला ना एक आई एम
मेरे को ऑलमोस्ट सब क्लियर है, मुझे बस एक चीज जाननी है कि इसमें मेरा एक n का वैल्यू मतलब डिफर कर रहा है फ्रॉम व्हाट आई स्टडीड, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ इसको एक बार समझने ठीक है के ठीक है ठीक है लिए। डन। चल ओके, तो the annual number of Earth registering at 5 can't get yeah. Okay, let's understand this and solve the question. ठीक है, इसको भी हम करते हैं. So it's asked that the annual number of earthquake registering at least 2.5 on a Richter scale and having an epicenter within 40 miles of downtown Memphis follows a Poisson distribution with mean 6.5. अभी थोड़ा सा पीछे जाओ पास्ट, उसमें याद आ रहा है कि Poisson distribution कहाँ और कब यूज किया था और उसका क्या फॉर्मूला था? Can anyone remember it? चल कोई बात नहीं, आई एम देयर टू मेक यू रिमेंबर दैट. तो हमारा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, नाउ वी गॉट टू नो वन थिंग that our following distribution follows Poisson's distribution. Got it? Poisson's distribution, and Poisson's distribution is discrete in nature, correct or not? Discrete in nature मतलब ये मेरे दिमाग में स्टेप बाय स्टेप चीजें आती जा रही है जो मैं लिखते जा रहा हूँ. ये चीजें मुझे करना पड़ेगी. I need to do all these things to get the answer. Plus, apart from this, I know for discrete, my mean mu is equal to lambda. Correct? याद है सब लोगों को ये चीज? या And sigma square or variance is also lambda. That means Yeah. our standard deviation is root of lambda. ये Mu दो equals चीजें हमने पढ़ी थी day 1 पे, right? हाँ बिल्कुल. Remember? एक काम करता हूँ अभी के लिए मैं आपको है ना ये एक फोटो भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे आप लोगों के अनऑफिशियल ग्रुप पे, जिसमें सारे फॉर्मूलेस मैंने लाइन से लिख के रखे हैं. तो आप लोगों को अगर कभी ऐसा लगे ना एकदम से कि लॉस्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इस इमेज को देख के आप ट्रैक कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट में शेयर करता हूँ, ऑफिशियल पे कर देता हूँ. डिड यू ऑल गेट इट? एक बार ऑफिशियल चेक कर लीजिए प्लीज. Yes, we got it. यस परफेक्ट, हाँ we got it. glad you got it. चलो, तो हमें आप अगर उसको अगर कहीं लॉस्ट हो रहे हो तो you can see that sheet and you can check that mu equal to lambda and sigma square is also lambda. So mu and sigma is lambda comma lambda square under root of lambda. Correct? Got it? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. So now it says that the annual number of earthquake registering at least 2.5 on the Richter scale epicenter within 40 miles on downtown follows it with this. What is the probability with that it will strike next year? तो अपने को क्या पूछा है? That it will strike next year का अपने को पूछा है. हम सुनाई नहीं दे रहे. हेलो हेलो या हेलो. Yes, yes. Yes, you can go on. Guys, I'm not able to hear you. Hello. Yes, you can go on. We are able to hear you. शायद वो नहीं सुन पा रहा हमें. What happened? Hello. आवाज आ रही है हमारी? Just Yes. give me a minute. Let me reconnect. I'm not able to hear you guys. Okay. Okay.
Hello guys, am I audible? Hello. हाँ Yes, yes. Yes, yes, you are audible. We are audible to you? I can see that you are saying like, but I'm not able to hear anything here. What's happening with internet? You are audible. Just give me a moment, guys. I'm just checking my sound. Yes. Can anyone say something? Hello. Yes, hello. Ah, perfect. Perfect. Oh, So thank God. हम Where तुमको was? सुन पा रहे थे. Yes. We were able to hear you, but you Yes. were Yes. not Yes. I'm able. also able to hear you. I'm sorry. Yes. तो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन का था, इट इज आस्क्ड, कहाँ पे था क्वेश्चन हमारा, ये रहा, द एनुअल नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स, ये वाला, okay, let's start in a new, I do not know what glitch happened, but okay, perfect, चलो. तो हम, are you able to hear me, right? Just a confirmation from you all. Yes, yes. Yeah, perfect. So हमें दे के रखा था, there was some information that was given to us that the annual number of ये सब दिया है, but what was important is that our mu equal to lambda and our sigma equal to under root of n, and we were asked that what is the probability that at least 9 will strike each next year. तो at least का क्या मतलब है, आपको याद होगा, I showed you like 4 cases. Less So than. what case will suit here? At least means less, greater Less than, than. equal to. यार एटलीस्ट 9 होंगे ना, तो 9 से ज्यादा, हाँ एटलीस्ट ज़्यादा. कम से कम 9, राइट? हाँ. राइट. अभी फॉर्मूला आपको, मैंने आपको एक शीट भेजी थी, आप एक बार उसमें फॉर्मूला चेक करके देखिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा फॉर दिस. Lambda. E to the power minus lambda. Lambda. into lambda to the power Lambda to k the power upon k k upon k k factorial. factorial. ठीक है, अभी देखो, we need to correct it, we need to approximate, like we need to normalize it, and to normalize a discrete into continuous, we need to, what we need to do, we need to Correction. correct that, correction, Continuous. error correction. तो अभी क्या करूँ इसको मैं, देखो ग्रेटर देन एंड इक्वल की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगा हमारा, व्हाट केस विल बी शूटिंग हियर, देखते जाके 9.5. क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में अपर बाउंड लेंगे, राइट? राइट और नॉट? तो हम ले लेंगे इक्वल टू 9.5, राइट? करेक्ट है? Correct. अभी देखो, इन क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू, इस यहाँ पे दिया है, यूज बोथ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन एंड एग्जैक्ट मेथड. तो जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना गाइस, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, स्टैंडर्डाइजिंग, एंड एग्जैक्ट मेथड इज व्हाट यू नो. आप एक बार, आप ये, आपको ये पूछा है, तो
इस केस में एक अपने ए पार्ट अपने को बोला है नॉर्मल एंड सेकंड दिया एग्जैक्ट, तो मैं आपको दोनों लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन यू दिस, राइट? तो नॉर्मल में वी विल डू विद द सेम अप्रोच, वी नो we will standardize this as x minus mu by sigma greater than equal to 9.5 minus mu by sigma, है ना? यहाँ पे पॉपुलेशन या वो नहीं दिया सैंपल, करेक्ट है? आप एक बार चेक कर लो, आपको क्या पूछा है, कई पॉपुलेशन सैंपल बोला है? नहीं, तो वी विल बी क्लियर विद दिस। अभी यहाँ पे म्यू अपना किसके इक्वल है? लैम्डा, एंड लैम्डा अपने को दिया है 6.5, तो अवर म्यू इज इक्वल टू 6.5 एंड अवर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.5, करेक्ट? गॉट इट? तो आई एम राइटिंग दिस हियर, मैं बस ये RHS, आई एम सॉल्विंग दिस RHS, राइट? बिकॉज आई नो मेरा बाकी तो वही है, z के इक्वल हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग 9.5 minus 6.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6.5, करेक्ट? लेट्स सॉल्व इट। तो 9.5 minus 6.5 will be 3 and under root of 6.5 will be 1.17, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा 1.17 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.17, अभी क्या करें? 1 कर दे माइनस, करेक्ट? अवनी मैम विथ मी, कहीं छूट तो नहीं गए? Greater than or equals to, right? या ग्रेटर देन इक्वल टू, सो सी वो कोई मैटर नहीं करता है ना। यस, इफ अल्फा पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये है तो इसका नेगेटिव तो यही होगा ना, टिल दिस, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन लेस देन इक्वल टू, आई हैव ओनली रिटन लेस देन, गॉट इट? दिस कैन बी फाउंड बाय यू गाइस, you find it, you subtract from 1, you will get the answer for the first case, normal, right? Okay. Yeah. Correct? That sounds great. Let's move on to the next part. So I'll borrow this question to the next part and we'll see exact method से क्या होगा। Exact method, although we have discussed multiple times, but since this is the special case, so we'll be doing this. I got confused here. Sorry. What is the use of this? In the question, they mentioned about the Poisson distribution and also normal. So, what is the use of Poisson distribution? So we will get confused, right? Here, if you question like that, we by default we will only solve the Poisson distribution. How we convert this to the normal? Yeah. Right. That's why I am solving it by using normal also and by using the actual also. What you're saying, you will get confused. So in this case, both the questions are given. You solve it with case 1 and you solve it with case 2, right? So since x greater than 9 है, see, x greater than 9, that means x will lie from 9 to infinity, right? Right. So this is pretty large value, and again solving it by exact method, I'll tell you what is the pain in doing this. You just follow along with me and you will get your answer. So what I'll do, if I'm not wrong, I'll do this, correct है? तो ये क्या होगा? Summation p of x equal to 0 from, oh sorry, I can write is as p of x equal to k will start from 0 to 8। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? p of x equal to 0 plus p of x equal to 1 plus p of x equal to 2 डॉट कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है, if I'm not wrong. Naresh, you are asking this question, right? If I'm not wrong, let me check. Yes. Yes, Naresh bhai. So this all calculation, and again to like do lambda e to the power, what is the formula? E to the power minus lambda into lambda to the power k upon k factorial. How many times? This 8 number of times. Will it take a lot of efforts to do this and solve the final answer? Right. Yes. Right? That's why we go with standardizing. See, standardizing something is never wrong because we are doing the same. We are nothing doing different apart from this. We have the standardized formula. That's why we are at ease to solve a relatively complex or tough calculations. Abhi, for this case, abhi jo second case hai, so I need to solve it for you. So exact formula, what we need to do, we need to add this for all the cases. So what it will be? E to the power minus lambda, and what lambda is given in the previous question, it is 6.5, right? 6.5. Yes, so it will be e to the power minus 6.5 into 6.5 to the power 0 upon 0 factorial.
plus e to the power minus 6.5 into 6.5 to the power 1 upon 1 factorial plus dot 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 e to the power minus 6.5 into 6.5 to the power 8 upon 8 factorial. Correct? अभी इसमें से if I take common e to the power minus 6.5 तो अंदर क्या होगा you know it will be 1 plus 6.5 by 1 factorial plus 6.5 square by 2 factorial plus 6.5 cube by 3 factorial so on so forth till 6.5 to the power 8 by 8 factorial. Got it? अभी इन सबको एक्चुअल में you need to solve it using your calculator and brain, and once you get this value, this whole value, you need to multiply it to e to the power minus 6.5, and the answer that you will get, it will be your answer of second part, that is using exact formula. So Naresh, being a wise person, what is a good approach then? Solving all this chaotic question like solution, or doing this thing? Tell me. Yeah, normalization is the good thing. Perfect. So this is the reason why we came to the normalization, and here we won't be getting confused with this. Got it? Yes. Also, one thing to remember, that not every information given into the question is relevant, right? Please make sure. Do not blindly start writing the things, otherwise you will end up in a very bad situation where you have excessive data and you do not know how to do of it, right? So we just need to, like, when we got this is a Poisson's distribution. Let me check. Yeah, Geetika. I mean, is there any no, that's probably. Is there any chance that they mentioned to follow the exact method rather than with the normalization method in Poisson distribution? Ma'am, in the sheet it has been asked to us. See, this is both an exact method, right? Now, if the examination is 2 hours, so this will take approx 15 minutes, and that to not surety that it will end up with correct solution or not. So I feel like our faculty won't give this long question to us. Means he will give this question, but he won't mention that you need to specifically do using exact method. If you do by exact method, you will only lose your time in that. So better to go with normalization in this case. Okay. I hope my answer is relevant to you. Yes. Okay, Geetika ma'am, like you have a question? Am I audible? Yes. Yes, you are audible clearly. Yes, the question that we solved in part A, we took 9.5. Yeah. In what you explained, I guess there is some problem. It should be There's a 8. problem. Yeah. And with Acha. 8.5, answer is coming correct. Because if we will see greater than equal to 9, it means we want to include 9, right? So we Okay. should go lesser side. So you have written correctly if you will see your notes, but you are referring incorrectly, I guess. You should take 8.5 here. You are saying I should take 8.5 here, right? Yes, that Is In it normalize, what you are saying? normalize, yes. yeah. So, like, you are saying because we are not getting answer with 9.5 and we are getting it with 8.5. Is it what is the That point of proof for you? is the argument, but the concept that you shared in last slides, it's Acha. little Acha, bit acha. divergent. Like in this slide, I did go wrong. If are you saying this? No, you have done correctly, but here you are writing incorrectly. See, you explained correctly, but somehow Ma'am, you your put in voice is the not that clear. 9.5. Okay, am I audible now? Yeah. Please tell me. Yeah. So what I am saying is you have written correctly last in your past slides. Ankush, can you unmute yourself? Mute Yeah. yourself. Yeah, that's better. And but now you are referring incorrectly somehow because see na, we want हाँ बताइए. greater than equals to 9, right? So we want to include 9, right? So we should take 8.5, no? Greater than Acha, 8.5. yes. I'm sorry. This should be 8.5. Yes, you are right. Everything is right. Just we have written here incorrectly. Yeah, I wrote here incorrectly. Yeah, apologies for this.
this will be 8.5. If anyone who was following this, please correct it. I hope the solution that Gitika ma'am told that was right. I just mistakenly wrote this. I'll tell you once again what she told if her voice was not audible. So we need this since this is including 9, that means this condition x greater than 8.5 will serve the purpose of having 9 here, right? But if I write 9.5, then 9 cannot be greater than 9.5, and in question it was given that our condition is equating to 9. So yeah, your point makes absolute sense. Thank you for correcting me. So it will be 8. So yes, are we Yes, doing this because like if we evaluate it using 9 and like uh, then the point probabilities are not considered in the continuous, so we take exactly. 8.5. That's why we are taking error measurement. Yes, you are right about it. Since probability does not matter, that's why we are taking the bounds, either lower bound or upper bound, according to the situation given to us, like condition given to us, I can say. Okay, got it. एंड ये हर जगह नहीं होगा, राइट? ये सिर्फ तभी होगा, इट विल वर्क ओनली इन दैट केस व्हेन वी नीड टू कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस, राइट? If we are given direct continuous to continuous, we won't bother correcting, like doing any error correction. Yeah. Okay, when we are 130 normalizing, people. in that case also we need to do this process. No. If it is a continuous case by default, this is शुरुआत के question that we solved. ये देखो, if you see this, all the questions जब that we binomial did here, these were all by default given that it is in standard normal. See, this is normally distributed, Okay, this is normally distributed, this is normally distributed. You will find this a lot, right? okay, So it is given that it is normally distributed. So we know that this is a continuous case, and knowing that is a continuous case, we can go ahead with that. Got it? okay, fine. So Got it? where Got it it? is Got not it? mentioned that it is normally distributed, in that case we No. will have That to. is also not the case. See, brother, regardless of it is given or not, if we make a judgment out of the question that it is discrete in nature, because देखो यहाँ पे तो directly it was told that this follows a Poisson distribution. If you check this, it says directly Okay, that follows a Poisson. So Poisson is by default discrete in nature, discrete. correct or not? Yes. So Right. that is a direct indication. In the previous questions that we saw, we directly got to know that something is being dealing with success and failure only, not something other than that, not into a range of something. That's why we come to the conclusion that it is falling into the category of binomial, which is discrete in nature. Hence, we need to have that error correction and solve our purpose. Got it? Okay, discrete से अगर continuous बना रहे हैं तो बिल्कुल in that case we will बिल्कुल follow. बिल्कुल Okay. बिल्कुल क्योंकि ठीक है, fine, डिस्क्रीट perfect. Yeah. पॉइंट प्रोबेबिलिटी पे. गॉट इट? चलो, Yes. आई होप बाकी सब लोगों को समझ में आ गया होगा. कोई लेफ्ट बिहाइंड तो नहीं है? आउट ऑफ दिस 16 पीपल, 18 पीपल, सब लोग ट्रैक पे हैं? Yes, I So got it. greater than equals to means lower bound. We have to take lower bound, and हाँ. greater than means we have to take upper bound. Yes. देखो, आपको समझ में नहीं आता है ना, आप भूल जाते हो ना, तो जैसा अभी गीतिका मैम ने बताया ना, थिंक लाइक दैट. इफ यू थिंक लाइक दैट, यू विल गेट टू द कंक्लूजन. उस केस में मैं गलत भी लिखा ना, तो भी शी वाज एबल टू क्रैक इट. तो व्हाट इज द कंडीशन इफ इट ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5? तो दोनों डाल के देख लो. एक बार ये डाल के देख लो 9.5, एक बार ये डाल के देख लो 8.5, एंड चेक आपकी कंडीशन किस में मैच कर रही है. 9 वाली कंडीशन इसमें ट्रू होगी या इसमें ट्रू होगी? बट ऑब्वियस इसमें ट्रू होगी, इसलिए हम 8.5 लेंगे. समझ गए? Yeah. This is a derivation level. If you are able to learn that particular cases, then it is more than good. If you are not able to learn that and are confused with this, go with native approaches. Directly put values and see. You will definitely get to the conclusion. Got it? Yeah. Chalo. Without Yeah, Ash, can you go to that? Sorry, can you go to that Sorry. seventh slide? Sorry. Yeah. Okay. Exactly, approach. Which slide do you want, Naresh? Sixth one. Next one. I'm just taking the screenshot. Sure. Yeah, no, thank you. ओके, चलो जल्दी से 8 अगला क्वेश्चन देखते हैं. वी आर गोइंग विद द टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट राइट नाउ. सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं.
and let's try to solve this also. चलो अभी देखना भाई, है ना, आप लोग सब मिलके मेरे साथ डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाओ एंड गेट टू द कंक्लूजन व्हाट इज देयर एंड व्हाट्स नॉट. इट इज सेइंग दैट इन अ फैक्ट्री देयर आर 45 एक्सीडेंट्स पर ईयर. व्हाट इज दिस 45 एक्सीडेंट्स पर ईयर? क्या होता है ये? देखो अगर ये चीज नहीं भी दी होती ना यहाँ पे पॉइजन, तो भी मैंने आपको बताया था कि इफ सम इवेंट इज हैपनिंग relative to either time Yes. or either something that comes into the category of poison, क्योंकि ये मतलब ये डेफिनेशन है, ऐसा मान लीजिए आप, राइट. सो लैम्डा इज इक्वल टू 45. गॉट इट? चलो लैम्डा मिल गया, तो 2 सेकंड में बता दो म्यू क्या होगा, जल्दी से एकदम. 45 under root of 45. sigma is under root of 45. Perfect. अभी वही वो बोला है नॉर्मल, तो जिनको वो समझ में नहीं आया था, अभी देखो नरेश गाइस ब्रदर, ये देखो अब एक बार. It is asked that find the probability that there are more than 50 accident. अब एक बात बताओ, is it possible for you to go with exact process from 1 to 49? No, not possible. Not possible, right? That's why we go with this approximation approach. And approximation के केस में अभी जैसे हमें मालूम नहीं है, हमें वो याद नहीं है, तो लेट्स डू दिस थिंग. एक तो ये केस होगा 49.5, एक केस ये होगा 50.5. क्या केस आएगा सोच के बताओ जल्दी से. यस, ये मोर देन दिया है ना, तो ग्रेटर इक्वल टू 49.5. करेक्ट, 49.5. हाँ आप पूछ रहे थे कोई मोर देन पूछ रहा था यार, मोर देन बोला इसलिए तो ग्रेटर देन लगाया मैंने. एंड इक्वल टू नहीं आएगा. यस यू आर राइट, इक्वल टू नहीं आएगा. पंगा मेरा डस्टर. तो अब अपना केस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है. वापस सोचना मेरे साथ, ठीक है, वापस एक बार सोचेंगे. अभी उसने बोला इक्वलिटी नहीं है, तो अभी इस केस में मेरा x ग्रेटर देन 49.5 लेंगे या x ग्रेटर देन 50.5 लेंगे? 49.5. यार अगर मैं 49.5 ले लूंगा तो पुटिंग दिस 50 विल बी करेक्ट, right? That means at 0.50 our case is matching, but we know that this case is not for 50, right? Because it is greater than 50. That's why we'll take this. Okay, got it? Chalo. Okay. So probability of x greater than 50.5. चलो कर लेते हैं. कुछ टफ लग रहा है अभी? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है. Greater than 50.5 minus 45 upon under root of 45. Correct? So probability of z greater than 55.5 minus 45. .8198. ओके, तो बेसिकली 0.820 हो गया. तो अब मैं वही करूंगा. ये मेंशन नहीं है हमें, तो हमें डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करना है, राइट? इसको नॉर्मली करना है. क्या लाइक वो उस फॉर्मूले से नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करना है हमने ना ये वाला क्वेश्चन. पॉइजन से तो कर रहे हैं हम, पॉइजन से तो ये कंक्लूजन निकाला. पॉइजन नहीं दिया होता तो ये कंक्लूजन कैसे आता हमारा? नहीं दैट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला. हाँ तो ये क्या लिखा तो है, यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन. अच्छा ओके, दैट इज मोर सफिशिएंट इन इटसेल्फ. एंड प्लीज यार डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप. आप 2 घंटा यही करते बैठ जाओगे, 1 से लेके 49 तक ऐड करते रहोगे तो, है ना. दिस इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. वैसे भी वी नो दैट आफ्टर 30 वी गो विद z डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना. लेटर यू विल नो, जब हम chi square ये पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, विल गेट टू नो कि ये वाला केस होता है. ठीक है, गॉट इट. ये वाला हो गया, ये वाला आ जाएगा सब लोगों को. हाँ, क्रिस्टल क्लियर? पावनी मैम, अदर गाइस, ऑल अदर गाइस, सबको क्लियर है? Yes. यस. श्योर, हैप्पी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो इट सेज, यार हम क्या लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या? ओह वाओ, ग्रेट.
ठीक है 18 guys, भी तो I है, would request you, हाँ जी, sorry, 18 भी तो है अभी, हाँ मतलब लास्ट मतलब वही लास्ट मतलब Settle लास्ट है, टेल तक हाँ आ गए 17 18 बोथ आर द सेम क्वेश्चन, दोनों में ये शेपवेज जो भी है नाम ये यही दिया हुआ है, डोंट वरी ओके अबाउट इट। शेप, वो दोनों में उसको लास्ट ही समझ रहा हूँ, है ना। तो ठीक है गाइस, रीड दिस क्वेश्चन, एक बार हम ये फाइंड करते हैं पहले तो कि व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर, व्हाई इट इज गिवन सॉल्व विद शेप्स जो भी लिखा हुआ है वो, ओके। So it is asking a post office handles on an average 1000 letters a day. देखो, think along with me. यहाँ पे बोल रहा है on an average 10,000, तो मेरा म्यू 10,000 हो गया, correct? या It's saying suppose now that the variance sigma square is sigma 2 sigma square है, okay? In the number of letters is 2000, sigma square 2000 है, तो हमारा standard deviation क्या हो गया? अंडर 44.7. Wow, अंडर रूट ऑफ 44.7, right? नहीं 44.7, perfect, yeah, great. It says using Chebyshev's inequality, what can be said about the probability that the post office will handle 8,000 and 12,000 cases? अब एक काम करता हूँ मैं, एक आपके लिए छोटा सा एक ये सामने रखता हूँ आपके सामने केस, और आप देखिएगा कि व्हाट मतलब क्या ब्लंडर होगा अगर मैं ये शेबिशेव्स नहीं होगा। अच्छा पहली बात यहाँ पे आप एक बात बताओ मुझे, है ना, सी प्लीज फॉरगेट दिस थिंग यूजिंग शेबिशेव्स वाला इनइक्वालिटी जो दिया है ना, प्लीज फॉर अ मोमेंट डू नॉट रिमेंबर, मतलब ये इसको आप इसको कट कर दो इस लाइन को अभी के लिए, एंड नाउ रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कर क्या सकते हैं। देखो उसने बोला है एक म्यू दे दिया और सिग्मा दे दिया है, राइट। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफिस विल हैंडल द केसेस फ्रॉम एक्स फ्रॉम 8,000 to 12,000, राइट, करेक्ट है। नाउ थिंक अलोंग विथ मी, क्या मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ? सोचो एक बार, हाँ या नहीं। योर आउटपुट्स जस्ट टेक विद दिस, Yes. can I Yes. do it? अच्छा, okay. Those like many of the people are thinking yes only in their brain, because if at first place I would also think क्या यहाँ लिखा है normally standardized है? Is there anything written like this where it is written that it is normally distributed बोला है normally distributed यहाँ पे कहीं नहीं दिया है क्या? मतलब ऐसा कुछ लिखा है normally distributed है या distribution उसका normal है? नो No. पॉइंट नंबर 1 ये तो दिया ही नहीं है। तो जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिया रहता है तो हम ये चेक करते हैं इज अवर क्वेश्चन सम काइंड ऑफ डिस्क्रीट इन नेचर। तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर से हम कैसे पता लगाएं कि कोई सा डिस्क्रीट नेचर है, क्योंकि इट अभी हमें ये भी नहीं पता कि इज देयर एनी सक्सेस और फेलियर प्रोबेबिलिटी हियर, या हमें ये भी नहीं पता है कि इज इट फॉलोइंग ग्रेजुअली विद रिस्पेक्टिंग टू सम टाइम और समथिंग। तो अब क्या किया जाए? अब तो ये पॉइजन्स भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। तो इन दिस केस वेयर वी फील ब्लैंक कि यार हम नॉर्मलाइज भी नहीं कर पा रहे, नहीं कुछ नहीं कर पा रहे, देयर वी यूज शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। ओके, तो एक दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है, आई एम टेलिंग दिस टू यू, प्लीज रिमेंबर। एक होता है मार्कोव, यस करेक्ट, एक होता है शेबिशेव्स इनइक्वालिटी एंड वन होती है मार्कऑफ इनइक्वालिटी, मार्कऑफ्स जो भी ऑफ बोलो इनइक्वालिटी। अभी ये दो इनइक्वालिटी व्हेन इट कम्स इनटू पिक्चर, तो ये वाला जो केस है ये कब आएगा? व्हेन म्यू एंड सिग्मा आर नोन बट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन। गॉट इट? एंड मार्कोनिकॉफ तो और ही खराब है, वो बोलता है म्यू भी नहीं पता, सिग्मा भी नहीं पता एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता, तीनों ही नहीं पता, बिल्कुल एकदम वाइल्ड हो गया क्वेश्चन, right? So in that case we go with Markov's inequality. Abhi Markov's is not being taught, I guess. I do not remember sir teaching Markov's inequality. He just quoted this name in front of us, but he did not give any questions on it. Sheet में भी नहीं है, तो I am assuming कि ये वाला part नहीं आएगा। तो I will be more specific over this Chebyshev's inequality, right? तो Chebyshev's inequality कब होती है? जब हमें mean की and sigma is known and our distribution is unknown. Is this clear to us?
इज दिस क्लियर टू ऑल? जो मैंने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताया गाइस, सो तो नहीं गए सब लोग? यस 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 नहीं है, क्लियर है। यस यस मतलब सो गए? नहीं ग्रेट, नहीं चलो जगह जस्ट में। किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। हाँ, तो वी गॉट दिस। एक Yes. मिनट, एक मिनट, जस्ट Yes. एक मिनट गाइस, लैपटॉप चार्ज पे लगा। Okay, ठीक है, please tell me who was asking. Uh, yes, it's Getika. So in first line, we can see that 10,000 letters a day. So can't Yes. we think it in terms of time? Like we studied that if हाँ, there is a relation of time or something, then we okay, relate it with poison, right? I got it, I got it. Can't we think in that direction? ठीक है, if we either go in that condition right now at this moment, it is specifically mentioned to us कि आपको Chebyshev inequality लगानी है. I'll quote the like proper explanation to you, do not worry about it. But at first place it is given that using Chebyshev inequality, right? That first place it is written. Abhi you are asking, your point is correct. Let's see this question. It is saying, suppose that it is known that the number of item produced in a factory during a week is randomly equal to is 15 if the variance of the week production is equal to 25. अब इस केस में कैसे पता चलेगा हमें? राइट, इन दिस क्वेश्चन वी गॉट टू नो पर डे, हर दिन के हिसाब से बोला है इसने, पर डे के हिसाब से बोला है। यहाँ पे तो उसने ऐसा भी कुछ नहीं दिया है, राइट? देखो आप, यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर ऐसा दिया हुआ है पर डे के हिसाब से, मतलब हर दिन में कितना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो वी आर इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम एंड getting the data out of it per year. So per year we are calculating the data. Here also you are right, it is given that per कहाँ पे गया, यहाँ पे कि per day दिया है, you are right about it. But think of this, यहाँ पे तो during a week बोला है, right? यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया है, तो इस केस में तो हमें शेबिशेव्स भी नहीं पूछा है उसने, तो अभी क्या किया जाए? सो विद दिस, इन दिस केस वी विल यूज शेबिशेव्स। आपका जो पॉइंट है, आई विल टेल यू, अगर हम इसको चलो मान लेते हैं कि हम इसको वैसा ही लेके चलें जो आपने पॉइजन्स बोला, राइट? तो एक बार सोच के देखिएगा, राइट? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah. ठीक है, आप एक बात बताइए मुझे, राइट? हमारा कैसे बताऊं आपको, कैसे पूछूं? हाँ, राइट, अवर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन पॉइजन, राइट? एंड व्हाट इज अवर सिग्मा स्क्वायर? इज इट आल्सो इक्वल टू लैम्डा? करेक्ट? Yeah. So with this, if we evaluate this, can we conclude that mu is equal to variance, mean is equal to variance in Poisson? Yeah. अभी ये बताओ, are they equal? Okay. Got it? Okay. Got it? Fine. Fine. अभी देखो एक और मैजिक बताता हूँ, you will get lost with this, ठीक है? Even if I solve this using the formula that I know of standardizing, देखो what I will be ending up with, disaster होगा। देखो, I'll write 8,000 minus 10,000 upon sigma, that is एक बार चेक करूंगा इसको कि if I'm right or wrong here, 44.7. So basically it will be something minus 2,000 by 44.7, correct? And this will be 12,000 minus 10,000 by 44.7, right? So it is positive 2,000 by 44.7, right? अभी जब आप इसको करोगे, when you will solve this 2,000 divided by 44.7, I am getting exactly 44.7. So I am getting minus 44.7 to Z to 44.7. Correct?
अभी जब हम इसका ग्राफ अभी बनाएंगे ना इसका, तो हमें एग्जैक्ट बीच का आएगा एंड वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी 1. Why we'll get? Because we will write x less than 44.7 minus probability of x less than minus 44.7. And again, when we write this, we will write this as x greater than 44.7, and we will write this as 1 minus probability of x less than 44.7. Correct? And जब हम देखेंगे तो this will get cut by this, मतलब by any calculation, we won't to the correct calculation at any cost. That's why do not bother in doing all this calculation, because this will, like, disalign us with our thought. So let's come into direct point of what is Chebyshev's inequality. My voice is echoing. Can you please mute yourself, Geetika ma'am? Okay. अभी ये थोड़ा सा एक बस छोटा सा elephant has been gone, only the tail is left. Please focus on this and everything will be done in this case, right? So when we have the Chebyshev's inequality and we know that our sigma square is 2000 and our mu is 10,000, so what will be done here? So बिल्कुल क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 8,000 से x 12,000 के बीच में है. So guys, and like, listen to me. Each step is very important here. I need every one of you to be attentive with this particular problem. So when I'll be doing 8,000 minus mu, x minus mu, and 12,000 minus mu. Okay, मैं mu से minus करूंगा तो I will be getting minus 2,000 x minus 10,000 and 2,000. करेक्ट है? करेक्ट और नॉट? ये सही है? यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ. करेक्ट. Yes. So can I write this as x minus 10,000, or I can write mod of x minus 10,000 is less than 2,000. Can I write this? Yeah. I'm going it very slowly, right? I'm not rushing it anything. Don't worry about it. Okay. So our Chebyshev inequality, what it says? It says 1 minus probability of x minus k. We can write k as right now 10,000, mod of 10,000. And if it is less than some quantity, then it will be equivalent to or less than equal to sigma square by k square. Got it? And what is k here? K is this. K is this. Got it? The formula क्या है? If my probability, if my 1 minus probability of x minus capital Y less than k, then this will be substantially equal to sigma square by k square. Got it? ये आपको याद रखना पड़ेगा यार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मुझे भी याद रखना पड़ता है, हर बार देखना पड़ता है, तो प्लीज डू नोट दिस थिंग. ओके, आई विल डू दिस हियर. मैं नए पेज पे आपको अच्छे से दिखाऊंगा. तो व्हाट आई एम सेइंग 1 minus probability of x and mod of x less than some random quantity y, this will substantially equal to or less than sigma square by k square. Is it clear to you all? अच्छा, ये फॉर्मूला क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि डेरिवेशन नहीं है, बट ये क्या फॉर्मूला आपको समझ में आ पाया कि मैंने क्या लिखा? मतलब आपको एटलीस्ट ये क्वांटिटी सारी पता है, x क्या है, y क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर क्या है? एक बार लास्ट स्लाइड में जाएंगे यश, जस्ट फॉर अ सेकंड. एक चीज मैं यहाँ पे गलत लिखा, मैं उसको करेक्ट कर हाँ देता हूँ. वही चेक करने के लिए मैं शायद 1 minus probability of x mod of x minus y less than k. Yes, no, correct. ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ आपके सामने. व्हाट आई विल डू एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी ऑल विल गेट थ्रू इट इजीली. 10,000 less than 2,000 is less than equal to sigma square by k square. तो sigma square हमारा क्या है क्वेश्चन में?
हमें अगर क्वेश्चन देखे तो हमें बता के रखा उसने कि 2000. वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 2000. 2000 दे के रखा है, तो वी कैन बी राइट इट 2000 एंड व्हाट इज k? k is 2000, दिस इज k, तो 2000 का स्क्वायर, राइट? राइट, यस, दिस इज राइट. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरी क्वांटिटी को अभी के लिए मैं एक अल्फा बोल देता हूँ, है ना. ये अल्फा कुछ भी नहीं है ना, डू नॉट अज्यूम अल्फा एनीथिंग. अल्फा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है. इतना बड़ा क्वांटिटी ना लिख पाऊँ, ना लिखना पड़े इसलिए. 1/2000, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2000 is less than equal to probability of x mod of x minus 10,000 less than 2000, right? And इसको मैं solve करूंगा, तो I'll get the value as 2000 minus, ये तो 1999 upon 2000 करूंगा, 1999 divided by 2000, so I'll get 0.9995 is less than equal to probability of mod of x less than 10,000 mod completed and this mod is less than 2000. Got it? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. What is the probability? The probability is 0.9995. This is the answer. Note this down and we will solve the next question. ठीक है? To get 100% clarity of what we learned right now. Shall we go to the next question, last question? Guys, shall we go to the last question? Yeah. Yes. Yeah, yes. Yes. So only the last question is left of the sheet. I'm copying it and I'm pasting it, and we will go with a proper explanation and everything that is required in this question to get our concept clear with this shapes inequality. Okay. And we will prove that our answer is correct. This 0.75. We will come to the end of our solution. Got it? So chalo, let's go again. It says that it is known that the number of items produced in a factory during a week is a random variable with mean 50. Mu 50 लिख दूं, right? If the variance sigma square is equal to 25, तो भाई देखो पॉइजन्स तो नहीं लग सकता क्योंकि म्यू और ये दोनों ही अलग अलग है, राइट? तो पॉइजन वैसे भी नहीं था और ऐसे भी नहीं है. Now we need to find what can be said about the probability that this production will be between 40 to 60. So I need to find probability of something lying between 40 to 60, right? Right? तो स्टेप बाय स्टेप हम वापस पूरा करते हैं. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू 40 माइनस म्यू लेस देन x माइनस म्यू. हम देखो जैसे हम x मतलब हम x माइनस म्यू बाय सिग्मा करके हम स्टैंडर्डाइज करते थे ना, वैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे शेप्स इनइक्वालिटी के लिए. ओके, तो बट पहले बाय तो सिग्मा नहीं किया ना इसमें हमने. नहीं किया 40 नहीं किया है, करेक्ट नहीं किया है. तो p, तो 40 माइनस 50 हो गया माइनस 10, x माइनस 10 माइनस 50 ग्रेटर देन 10. तो मेरा ये लिख दूं मैं, x माइनस 50 का मॉड is less than 10. Can I write it? Guys, can I write this? Yes. 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 अभी using शेप्स, जो भी उसकी स्पेलिंग होगी प्लीज फॉरगिव मी दैट. शेप्स इनइक्वालिटी, अभी इनइक्वालिटी है ना, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद sigma square by k square. So what it says, 1 minus probability of mod of x minus 50 less than 10 is less than equal to sigma square by k square. So 1 minus probability of mod of x minus 50 less than 10 is less than equal to sigma square is given 25 and k square is 100. Correct? मैं इसको इधर ले जाऊं एंड इस क्वांटिटी को इधर ले आऊंगा, तो आई विल एंड अप एज 75 by 100 is less than probability of x minus 50 mod less than 10. Correct? Correct? And this will be like 3/4. So 3/4 will be 0.75. Right? Correct?
गाइस कोई सोया तो नहीं ना? नहीं No. So we got this probability and answer as, or I can inverse it and I can write probability of mod of x minus 50 less than 10 is greater than 0.75. Correct? So what it says that it will, अभी देखो ये चीज का मतलब ही है कि it is lying between -10 to 10, that is this range, right? तो we do not need to bother यार ये क्या पूछा था और ये क्या निकाल दिया. We manually came to this conclusion. If we reverse track this, we will reach to this point only. So our for probability of x lying between 40 and 60 is greater than equal to 0.75, and this is the answer. यार एक चीज है ना, ये जो 40 माइनस म्यू किया, इसमें सिग्मा क्यों नहीं लिखा हमने? सिग्मा क्यों नहीं लिखा ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, क्योंकि हम ये जो सिग्मा है, ये जो फॉर्मूला है, ये तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ना. हाँ, और हमें Right? डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है. हमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ी निकालना है. हाँ, अच्छा, हम नॉर्मल क्वेश्चन में भी सिग्मा क्यों करते थे? क्योंकि हमें इसे नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड में लाना था. हमें इसे इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड में लाना है, इसलिए हमने इसे ये वाले फॉर्मूले में लिखा. राइट? We are doing according to what is asked and what we need to convert that particular variable into our standard, right? Okay. Got it? So this marks the end of tutorial sheet. Yes. Still few questions are left. Still 4 questions are left, right? Still Yeah. 4 questions are, and they all are on the same concept. यार ये वाला जो concept है ना, पिछली बार भी जब मैंने बताया था ना, it took me very pain to understand. क्योंकि है ना, actually इस sheet के, to be honest, there is no solution to it. Solution नहीं दिए हैं इसके. नहीं इस दिए sheet. इसको नहीं दिए. So we need पोर्ट to दोनों think की नहीं on है. our own and get to the conclusion, right? पोर्ट के भी नहीं है ना यश. Fourth के भी दोनों नहीं. के नहीं है. Yes, that makes me crying a lot. But okay, नहीं है fourth के भी. तो what we will do, मैं आपको कल ये 4 क्वेश्चन बताऊंगा. बट एक काम करोगे क्या मेरे लिए, राइट? प्लीज सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. एक बार सब भूल जाओ कि आपके पास सॉल्यूशन है, आप सारे एक बार खुद होके करके देख लो. If you are able to do all the question on your own, that means you and I, we both won. Okay? If you are not, then also you have that power of like checking the solutions that you have right now. So that will bring up more confidence in you, because the fact is that when you will pen down things, you will get more understanding rather than listening. एक स्टडी मैंने देखी थी that says 7 times of reading is equivalent to 1 time of writing. So it's better आप उसको खुद से एक बार solve करके देख लेंगे, तो you will get 100% assurance of what you are learning and writing. Got it? चलो guys, let's meet tomorrow again at the same time, है ना? And we will go with this 4 questions, and then we will start with the estimation theory. Okay. All good? Okay. All good? Yes, sir. Okay. Chalo. Thank you guys. Thank you for attending it, and hope we meet tomorrow. Bye bye. Yes, tomorrow Thank we you, are Yash. starting. Thank you. Thank you, Sorry? Yash. Thank you. Is anyone asking something? Tomorrow we are starting the estimation theory. Yeah, I'll try to start the estimation theory if I am able to learn that estimation theory in time. Okay. अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा. मुझे नहीं आया तो मुझे ही नहीं आया तो आपको कैसे बताऊंगा, राइट? तो then I'll take some more time, but I'll definitely, that is for sure. आप लोग immersion में भी आओगे ना, तो we have a lot of time. Because from morning to evening we all will be together only. तो हो जाएगा सब. I believe in that. ठीक है? Yes, sure. चलो, okay. Yes, thank you. Great day. Bye bye. Good night. Yes, do you have any idea what this immersion, what they will do? Sorry, ma'am. Sorry, sir. What was saying? No. In the immersion, what exactly we need to do? Any idea? Study. Only study. We have classes. I guess there will be no classes, but as far as I got to know from past members, they are saying that they put us into group discussions, and there are some activities that go around that are not that good, but also that are not that bad. That is something that is indulging and entertaining. But exam ka we will have that pressure, so we will also invest more time and devote it towards studies. So let's go with the flow. Abhi I do not have any concrete to this. Okay. Chalo. Thank you guys. Thank you all. Good night. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.